आओ जी आप एवीएस इंटरनेशनल सलून एंड अकेडमी की थोड़ा जो बिल्डिंग है जो उन्होंने प्रोडक्टिविटी है वो बारे में सारी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना ये तुम देख रहे हो जी ये सारे मेकअप जो स्किन थेरेपी का लगे हुआ है स्किन रेवोल्यूशन का लगे हुए पिंपल्स वगैरह के प्रॉब्लम आती है ब्लैमिशेस आती है ठीक है अंकिता जी ना तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखते हैं कि इतने रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं छोटी एज में ही रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं उन्होंने एंटी रिंकल है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡੇ ਔਰ ਨਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਓਰ ਹਰਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਬੀਅਰਡ ਆਇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਈਡਲੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਓ ਉਹ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਓ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਟ ਸੀਰਮ ਬ੍ਰਾਈਡਲਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 15 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸੀਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਬਚ ਜਾਣਗੇ क्यों क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ 3 ਫੇਸ਼ੀਅਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਵੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਔਰ 25 27 38 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ 30 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 27 ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ठीक है मैं आज कितना फेशियल नहीं करवाया भावें मेरा सलून है मैं जल्दी कितना नहीं रिकमेंड कर रही अगर तुम होम केयर कर रहे हो डेली नाइट विच फेस वॉश कर रहे हो नाइट सीरम लगा रहे हो या नाइट क्रीम लगा रहे हो जो ਤੁਹਾਡੀ स्किन के अकॉर्डिंग ਤੁਹਾਨੂੰ सूट करे बिल्कुल वो इन्नी केयर कर रहे हो और ब्रीथिंग ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ हैंडमेड मास्क है और इनके विच 46 इनके विच सारियां दालां हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है ਤੁਸੀਂ फोकस करके देख सकते हो सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਗਲੋ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ which mean ਲਿਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦਿਸ ਲਿਪ ਬਾਮ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਲਰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੈਚੁਰਲ ਬਲੈਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਪਿਓਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट मेरा आ जाता है ग्लो लोशन ठीक है और ये भी आयुर्वेदिक है ये 9-in-1 है एक कुमकांडी ऑयल के नाल बनाया गया है ठीक है और कोकोनट बेस के विच इन्हें रेडी किया जाता है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स तुसी देख सकते हो मेरे हेयर ऑयल भी है जी जो मैं खुद बना लिया तुसी सुनिया होगा किसी दे खड्डे है फेस ते खड्डे पर देखते हैं ना पिंपल्स तो बाद खड्डे पै जाते हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਸ ਫਿਲ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਮੰਥਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਟ ਵੀ ਸੇਫ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ L5 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀ ਆਇਲ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 17 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਦਾ ਕਾਂਟੋ ਕੇ ਫੂਲ ਹੈਂਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਟਿਕ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ओके मैम ये वाली जी अपनी प्रॉब्लम आ रही है जी ज्यादातर जी एज ईवन एज लिए आप गल करते हैं वैसे अपन नॉर्मली जो नॉर्मल जो यंग एज के जोड़े है मतलब जो नौजवान होंगे या गर्ल्स होंगे ने उन्होंने भी ये ज्यादातर प्रॉब्लम आती रहती है ठीक है ज्यादा बैठन के करके होगी ज्यादा तुरन फिरन के करके कोई थकावट आ जाती है कोई मैम मतलब इदा का कोई टिप्स जोड़े साडे दर्शकों नाल शेयर करना चाहते हो कोई मतलब नॉर्मल टिप्स जो जनरली अपन यूज करने चाहिए डेली लाइफ के
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋ ਚਾਹੀਦਾ जी पानी पियो 8 गिलास पानी डेली ਦੇ ਪੀਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪਪਾਇਆ ਖਾਣਾ ਸਟਾर्ट ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ बिल्कुल कोकोनट वाटर लेना स्टार्ट कर दो ठीक है टी अवॉइड करो शुगर अवॉइड करो ठीक है एंड कीप हेल्दी और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲੂਨ ਹੈ ABS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੂਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तो मैम मतलब ये प्रोडक्ट में केड़े प्रोडक्ट ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लाइक स्किन नेल्स ਤੁਸੀਂ बहुत सारे पेशेंट्स ने देखा होगा नेल्स बिल्कुल बैक हो जाते हैं टूट जाते हैं फंगस लग जाते हैं जी ਉਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ और बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ within 10 days ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀਲ ਹੋਈ ਹੈ और ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ एक फेस वॉश और एक नाइट क्रीम और वो नाइट क्रीम 101% आयुर्वेदिक है उनमें कोई केमिकल नहीं है और बहुत सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं मैं तुम्हें पूरी लिस्ट दिखा दाँगी प्रोडक्ट्स के व्यूज दिखा दाँगी व्यूज डेली मेरे अपडेट होंगे ही रहने हैं जी तुम देखिए खुद सब तो बड़ा व्यू तो खुद ही ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਓਨਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੇਸ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ABS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ और मैं इन्होंने आगे तक भी सपोर्ट करती रहांगी सैकेंड थिंग मैम जो तुसी ये चीज़ कर रहे हो ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ हाँ जी जो बच्चे लिटरली नहीं पे कर सकते बहुत सारे स्टूडेंट्स कई कहते हैं कि ਅਸੀਂ थोड़े पैसे दे दें कोई हर एक कोई 1-2 लाख इकट्ठा नहीं दे सकता 2 ईयर कोर्स जिन्होंने ने लिता होंगे डिप्लोमा डिग्री कोर्स वो 2 लाख कोई भी बच्चा नहीं पे कर सकता उन्होंने मीडियम अमाउंट मिनिमम अमाउंट उन्होंने रखी होंगी है कि एनी अमाउंट ऑफ पे कर दें ये बिल्कुल ही जेडे मैं तुहानू स्टूडेंट्स नाल मिलवाया बिल्कुल मेरे को इस टाइम पे मेरे को 6 स्टूडेंट्स इस तरह दे जिन्हें मैंने ₹1 भी पे नहीं कर रहे नॉट ओनली ₹1 इवन बट सिर्फ उन्हें मेरा टारगेट ये है कि कोई भी एस अपने स्किल इंडिया चल रहा है उनके अंदर मैं काम कर रही हूँ तो कोई काम करे बिना सरदा था किसी का बिल्कुल तो इस करके गरीब बच्चे लिए स्पेशली और स्पेशली जो गरीब परिवार है हर एक का सपना होता है कि सर असं ब्राइडल वाले दिन पार्लर तो तैयार हुई और मलोट के मोर देन आई थिंक 400 to 500 सलून अवेलेबल है और शायद ही किसी सलून वाले ने और समूहिक विवाह के बिल्कुल फ्री सर्विसेज करते हैं ठीक है बट देख के कई बार कई झूठ बोल रहे हैं तो इस चीज़ तो अवेयर होके ਜਿਹੜੇ नहीं पे कर सकते उन्होंने बिल्कुल फ्री सर्विसेज है दूसरा चीज़ सेकेंड सैटरडे हर सेकेंड सैटरडे ਅਸੀਂ स्किन हेयर नेल्स किसी को भी कोई प्रॉब्लम है उनका बिल्कुल फ्री टेस्ट करते हैं अगर उन्होंने ट्रीटमेंट की जरूरत है सिर्फ वो ट्रीटमेंट भी उन्होंने पैसे लिते जाएंगे और ट्रीटमेंट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा 300 तो स्टार्ट हो जाते ट्रीटमेंट और 101% रिजल्ट्स है और मैम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 101% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਵਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਗੀ ਲੋਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਘਟਵਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰੀਮ
ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਕਰੀਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੈਲੂਨ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ABS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ABS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਿਨਾ 24। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਕਰ ਜੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਪਾਉਂ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਉਂਝ ਬਹੁਤਾ ਗਿਫਟੀ ਸ਼ਕੀਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਖੂਬੀਆਂ।
डस्ट फ्री करने के लिए पहले 1 क्लिनजिंग की। अब हम डबल क्लिनजिंग करेंगे। डबल क्लिनजिंग का मतलब अब हम लोग एक बारी और क्लिनजिंग कर रहे हैं। तो क्लिनजिंग करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं मेरा लैक्टोप्रोटीन मलबरी क्लिनजर। शहतूत को बोलते हैं मलबरी। शहतूत अगर आप जानते हो तो शहतूत के जो पत्ते होते हैं उसे सिल्कवॉर्म खाता है, उससे कोकेन बनता है और उसका सिल्क का कपड़ा बनता है। तो जैसे आपका सिल्क का कपड़ा चमकदार होता है, स्मूथ होता है, शाइनिंग देता है, उसी तरीके से जो क्लिनजर है मलबरी के एक्सट्रैक्ट के साथ में बनाया गया है। तो पहले स्टेप से ही आपके चेहरे के अंदर स्मूथनेस, सॉफ्टनेस और चमक आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लिनजिंग करेंगे। हमें क्लिनजिंग कितने समय तक करनी चाहिए? हाँ जी 3 मिनट्स, 3 से 5। और कोई 5 to 10 नहीं? देखो कितने विचार है ना सब लोगों के। A4 क्या होता है? एप्पल ही होता है, एरोप्लेन नहीं होता। तो फिर तो वैसे ही क्लिनजिंग करते हो तो इतने सारे क्यों? A4 एप्पल होता है तो क्लिनजिंग का भी एक ही चीज होनी चाहिए। यस और नो? कायदा तो यही कहता है ना, जो कायदा बनाया गया है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कायदे से चलते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो हमें कायदा ये कहता है कि हमारे को जो क्लिनजिंग होती है वो कम से कम 5 से 7 मिनट तक करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक मेरी सरफेस साफ नहीं है, मेरी सरफेस अच्छे से साफ नहीं हुई है, मैं उसके ऊपर कोई भी चीज अच्छी लगाऊंगा ना वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। लेकिन अगर मेरी सफाई हो चुकी है अच्छे से और उसके ऊपर मैं करूंगा तो बहुत अच्छा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ये शर्ट पहनी है, मैं मेट्रो में आया, मेरी शर्ट गंदी नहीं हुई उतनी क्योंकि एसी था। मैं गाड़ी में आया, मेरी शर्ट गंदी नहीं हुई, मैंने सोचा मैं कल दोबारा पहन लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने क्या किया, उसे आयरन कर दिया। धूल मिट्टी थी थोड़ी बहुत, आयरन कर दिया तो मैल उसमें और जम गई। तो वैसे ही होता है स्किन। अगर मेरे स्किन पे पहले से कुछ भी गंदगी रह गई है और उसको मैं उसके ऊपर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लगाता रहूं तो क्या होगा, वो और गंदगी को अंदर बिठा के रखेगा। तो मुझे क्लिनजिंग जो होती है, चाहे मसाज में 5 मिनट कम कर दो लेकिन क्लिनजिंग अच्छे से करनी चाहिए। तो मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 मिनट्स तक क्लिनजिंग करनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं है, आपको मैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग को सबने सीखा हुआ है, यार मैंने भी आप जैसे सीखा हुआ है, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीजों को कि इसको करने से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तब मैंने आपको वो चीजें बता रहा हूँ। तो आप लोग भी 5 से 7 मिनट तक क्लिनजिंग करोगे और तब रिजल्ट देखोगे तो आपको क्लिनजिंग के अंदर ही आधे से ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको क्लिनजिंग में ही आधे से ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इनके अच्छे से क्लिनजिंग कर रहे हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मसाज चाहे 5 मिनट कम कर दूं लेकिन क्लिनजिंग ना करूं कम। तो इसलिए मैं अच्छे से क्लिनजिंग कर रहा हूं मैम की। ठीक है, तो अच्छे से हमने 5-7 मिनट तक क्लिनजिंग की और क्लिनजर को अच्छे से साफ करेंगे और नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अब मैंने ये भी देखा है कि जब हम लोग अपने कस्टमर को, जैसे हम लोग बात करते हैं पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस की, तो हम जब अपने कस्टमर को पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस की क्रीम देते हैं और कस्टमर को बोलते हैं मैडम ये यूज करो, ये काम आएगी आपके और आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी, लेकिन कस्टमर आके बोलते हैं नहीं गई नहीं बढ़ गई। मतलब बढ़ने का मतलब है कि वो और ज्यादा दिखाई देने लग गई। क्यों होता है, कोई बताएगा? क्या पिगमेंटेशन क्रीम को लगाने से पिगमेंटेशन और बढ़ सकती है क्या? हम लोग जब अपने कस्टमर को क्रीम देते हैं तो कभी हम ये नहीं बोलते कि मैडम जहाँ पिगमेंटेशन ना वहीं लगाना। वो क्या करती है, पूरे फेस पे लगाती है। जब पूरे फेस पे लगाती है, मेरा यहाँ का मेलानिन लाइटर है, यहाँ का मेलानिन जो पिगमेंटेशन का वो डार्कर है, तो इसको वो जल्दी लाइट करेगा इसके अपेक्षित। जब ये लाइट हो जाएगा तो ये तो अपने आप डार्क दिखाई देगा। तो आपको हमेशा जब भी एक पिगमेंटेशन क्रीम देनी होती है, कस्टमर को ये बताना है जितने एरिया पे पिगमेंटेशन है वहां लगानी है और उसको डैब 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 करके लगानी है, मलना नहीं है। मलते हैं तो इतनी सी निकालते हैं हम लोग, इतनी सी क्या काम करेगी? तो आपको क्वांटिटी निकाल करके जिस एरिया पे लगाया वहां पे डैब 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 करके लगाओ जिससे कि वो पेनिट्रेट हो, और उतनी ही जगह पे लगाओ जहां पिगमेंटेशन है, पूरे चेहरे पे नहीं लगानी। जैसे हमारे पास में डीपिगमेंटेशन क्रीम आती है, यूवी कवर डीपिगमेंटेशन क्रीम आती है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। वो विटामिन ई और विटामिन ए के साथ बनाई गई है, बीटजम ऑयल के साथ बनाई गई है, वो आप यूज कर सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए। अब हम इनका दूसरा स्टेप करेंगे जिसका नाम है लूफा स्क्रब, जो मैं आपको अभी बता रहा था। ये रेशा है इसके अंदर, मतलब कि आपको फाइबर्स बेस्ड स्क्रब है, बहुत माइल्ड स्क्रब है। अब कई लोग बोलते हैं स्टीम, अगर आप चाहो तो स्टीम दे सकते हो, नहीं चाहो तो मत दो। क्या होता है, कई कस्टमर, एक मैडम ने बोलता है मैं महाराष्ट्र से हूं, यस और नो?
कौन थी मैडम, महाराष्ट्र वाली मैडम? इनके यहाँ पे क्या होता है, कोई भी फेशियल विदाउट स्टीम होता ही नहीं है। स्टीम नहीं तो फेशियल ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर मैं जब फर्स्ट टाइम सेमिनार्स लेने के लिए गया था तो मैंने किसी भी फेशियल में स्टीम नहीं दी, तो मेरे लड़के ने बोला कुछ आता ही नहीं था सर को। तो नॉर्मली स्टीम इज नॉट कंपलसरी। वही चीज़ है कि कई जगह पे बहुत कंपलसरी है, महाराष्ट्र के अंदर इट्स वेरी कंपलसरी। आप कोई भी फेशियल करो, स्किन चाहे कुछ भी है, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, कुछ भी स्किन है, स्टीम नहीं दिया तो फेशियल ही नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट को लगाओ, हमारा जो लूफा बेस स्क्रब है इसे लगाओ, लगाने के बाद में इसके ऊपर 2 से 3 मिनट तक स्टीम दे सकते हो और फिर आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको स्टीम देनी है तो दे सकते हो, अभी तो यहाँ पे हम लोग नहीं देंगे क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। लूफा स्क्रब, हाँ, जो लैक्टोप्रोटीन में है। ये किट के अंदर ही आता है सारा प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तभी वही मैंने कहा कि इट्स ऑल इफ रिक्वायर्ड यू कैन गिव, कंपल्शन नहीं है किसी चीज की। आप दे भी सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते, डिपेंडिंग अपॉन। देखिए यस, ये क्वेश्चन अच्छा था। स्टीम किसकी स्किन पे दें, किसको? हाँ, किस पे? ऑयली, ओके। और कोई जिसके ब्लैक हेड्स हो और ओपन पोर्स हो, ओपन पोर्स वालों को नहीं देनी चाहिए। ग्रेट। और कोई जिनके ब्लैक हेड्स होंगे उनको देंगे। वैसे तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, स्टीम देते क्यों है? पोर्स ओपन करने के लिए। ऑयली स्किन पे तो वैसे ही ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर क्यों देते हो? बेसिकली स्टीम बनाई गई है जिनकी स्किन मैच्योर, ड्राई, रिंकल्ड रहती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्यों होती है मैच्योर, ड्राई, रिंकल्ड? जो सीबम होता है वो जब बाहर निकलता है तो हमारी स्किन को अपने आप ही मॉइस्चराइज करता है। जब हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और सीबम प्रोड्यूस नहीं होता और बाहर नहीं निकलता तो हमारी स्किन ड्राई और मैच्योर होने लगती है। तो वहां पे पोर्स को खोला जाता है, पोर्स की गंदगी को साफ किया जाता है जिससे कि सीबम बाहर निकल के स्किन को मॉइस्चराइज कर सके। तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के ऊपर स्टीम देनी चाहिए, ऑयली के ऊपर तो देनी नहीं चाहिए। मैडम गर्मियों सर्दी दोनों में दे सकते हैं स्टीम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी क्लाइंट की स्किन नॉर्मल टू ड्राई, आप गर्मी में भी दे सकते हो, लेकिन ज़रूरी है कि आपको साथ के साथ आपके पोर्स को मिनिमाइज करना है। आपको कोल्ड कंप्रेशर ज़रूर देना है स्टीम देने के बाद, जो कोई भी नहीं करता। आपको कहना है सर्दियों में भी कोल्ड कंप्रेशर देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जब आप मसाज कर लेते हो, मसाज करने के बाद में 2-4 आइस क्यूब्स रखो, उसके नीचे एक टिश्यू पेपर रखो, हल्का सा उसके ऊपर टोनर या एक फ्रेशनर कुछ भी डाल सकते हो, और वो जो होता है कपड़ा, आपका टिश्यू पेपर होता है, उसे चेहरे पे लगा के उसको डैप डैप करो। या फिर अगर आपके पास में कोल्ड स्टीमर है तो कोल्ड स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपने स्टीम दी है तो कोल्ड कंप्रेशर ज़रूर 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 दो, क्योंकि पोर्स ओपन हो चुके तो पोर्स को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, कभी भी नहीं। आइज आपके, अगर क्या नाम है, आइस वैसे ठंडी होती है लेकिन जब चेहरे पे लगा तो गर्म होती है और ज्यादा स्किन इरिटेट हो जाती है। आइस को कपड़े में डाल के या आइस कूल्ड वाटर लेके यूज करो, बट आइस को डायरेक्टली कभी भी फेस पे इस्तेमाल नहीं करो। आपको कभी भी वैक्सीन के बाद प्रॉब्लम हुई है, थ्रेडिंग के बाद प्रॉब्लम हुई है, ठंडा पानी लेकर के पानी डालो मर्जी जितना, लेकिन बर्फ मत रगड़ो, बर्फ से और ज्यादा बढ़ जाएगा। बर्फ की तासीर गर्म होती है। हाँ देखो, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था। आप किसी भी XYZ ब्रांड का ना, XYZ ब्रांड कोई भी ब्रांड होगा ना,
आप जब भी स्किन लाइटनिंग फेशियल करोगे ना, वो स्किन को ड्राई करता है। किसने बोला था ये क्वेश्चन? आपका। क्योंकि आप किसी भी ब्रांड का आप स्किन लाइटनिंग फेशियल लोगे ना, वो स्किन को ड्राई करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि ये फेशियल हम सभी स्किन टाइप पे कर सकते हैं, मैं वैसे बताने ही वाला था लेकिन आपने क्वेश्चन कर लिया। हम लोगों ने उसके लिए एक्स्ट्रा एक चीज डाली हुई है जिससे कि स्किन ड्राई नहीं होगी। तो मैंने ये किया। ये करने के बाद में मुझे इनके चेहरे के ऊपर ब्लैक एंड वाइट अगर हैं तो उसको निकालना है, अगर नहीं है तो हमारे पास में ये फ्रेशनर आता है, इसका नाम थाइमराइम फ्रेशनर है। ये हम इनके चेहरे पे स्प्रे करेंगे। सभी अपने हाथ पे स्प्रे करके इसको स्मेल करके देखो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे डैप कर रहे हैं। कभी भी जब आप फ्रेशनर या टोनर लगाते हो तो नहीं, इनके फेस की तो जरूरत ही नहीं है, इतनी अच्छी शाइन आ रखी है उनके चेहरे के ऊपर, मस्त। आप देख रहे हो कितना शाइन कर उनका चेहरा। ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सबके लिए लेके जाना थोड़ा ठीक है। अच्छा, सबके लिए डब्बा छोड़ जाऊंगा, नो इश्यूज। जितना है उसमें वो सब आप यूज कर लेना। सर पहले देख लीजिएगा कितने बंदे इतने में कितना हो जाएगा। मैम देखो, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला, नहीं तो मैं नया डब्बा उठा के ले आता। मैं ये मानता हूँ, कभी भी मैं प्रोडक्ट के अंदर कभी कंजूसी इसलिए नहीं करता। मैं बोलता हूँ यार, जब तक आप यूज नहीं करोगे, उसको खुद नहीं फील करोगे तो पता कैसे चलेगा। ये स्किन लाइटनिंग सीरम है, ये हम इनके चेहरे के ऊपर लगाएंगे। ये जो स्किन लाइटनिंग सीरम है इसको लगाना है। अगर आपके पास में अल्ट्रासोनिक मशीन है तो आप यूज कर सकते हैं, और अगर के पास में अल्ट्रासोनिक मशीन नहीं है, इसे लगा के 5 मिनट छोड़ दो, ये अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपको 5 ड्रॉप्स इसीलिए लगाना है क्योंकि सीरम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्लेंड होते हैं या बहुत ज्यादा फैलते हैं। हाँ मैम, ऐसे तो देखो बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर्स मना करते हैं, बट मैं जिस भी डॉक्टर ने कहा था, हाँ क्यों नहीं यूज करना चाहिए, आपने ये नहीं पूछा उनसे? क्यों? हाँ अच्छा, स्किन की तो 3 लेयर होती है, 7 लेयर को कैसे क्रॉस कर जाता है? स्किन की तो 3 लेयर होती है, तो 7 लेयर पे कैसे क्रॉस कर जाता है? एपिडर्मिस, डर्मस, हाइपोडर्मस, तो 3 लेयर होती हैं, लेकिन 7 लेयर भी होती हैं क्योंकि एपिडर्मिस की 7 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस की 7 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस जो लेयर है उसकी 7 लेयर्स होती हैं। तो हाँ, बेसिकली इसके अंदर मैम आप उनको ये बता सकते थे, अल्ट्रासोनिक मशीन के अंदर जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो 1 मेगाहर्ट्ज की है। 1 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, वो ऊपर की 2-3 लेयर तक ही रहती है। अल्ट्रासोनिक जो होती है बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की भी आती है, ज़्यादातर दिया जाता है जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है उनके लिए। मैं आपको सब बता दूंगा, मैंने तो इसकी पूरी हिस्ट्री ले रखी है। मेरी कोशिश ये रहती है जब भी मैं अगर एक टॉपिक लेता हूँ तो उसे मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। ये वो लोग यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं बेसिकली उसकी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। अब अगर आप हमारी अल्ट्रासोनिक है ना, वो गर्म नहीं लगती, उनकी गर्म होती है। हमारी के ऊपर हम डाल के देखते हैं पानी की वो गर्म है कि नहीं, बुलबुले उठेंगे तो चल रही है इसका मतलब, लेकिन उनकी तो बिना देखे लगाओ तो पता चलता है कि हाँ लग रही है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इट्स नेग्लिजिबल। ये वाली नेग्लिजिबल अमाउंट की हाई फ्रीक्वेंसी होती है जो कि सीरम्स को या किसी चीज़ को भी पेनिट्रेट करने में मदद करती है। तो इसलिए हमारी जो मशीन होती है वो 1 मेगाहर्ट्ज की होती है, और जो उनकी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 मेगाहर्ट्ज की होती है। तो 1 और 100 कहाँ तक डिफरेंस है? तो वो लोग तो मना करेंगे, लेकिन ये नहीं पता वो खुद भी तो अपने सर्जिकल काम कर रहे हैं उससे। फिर हमारा आज अगर एक डॉक्टर ही तो क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं। ये देखो, ये पूरा अच्छे से पेनिट्रेट हो गया। अब क्या है इसके अंदर, जैसे अभी मैम ने बात की थी, अगर मेरे क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो मुझे केवल ब्लूबेरी क्रीम से मसाज करनी है। मेरे क्लाइंट की स्किन क्या है, ऑयली है, तो ब्लूबेरी क्रीम से। तो अभी हम लोग इनके चेहरे की मसाज करेंगे तो इससे इनकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी।